সাংবাদিক বন্ধুদেরকে প্রথমে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং পুরো রাজ্যবাসীকে আমার প্রণাম জানাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। আজকে আমরা যে সাংবাদিক সম্মেলন করতে যাচ্ছি, উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের সহসভাপতি তথা এমডিসি মাননীয় বিমল চাকমা মহোদয় এবং উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ মাননীয় সুমিত সরকার মহোদয়। আজকের যে এক বিশেষ আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন সেটা হচ্ছে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে আগামী 13ই ডিসেম্বর আগরতলা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে আমাদের বিশেষ এক মহা যোগদান সভা আমরা আয়োজন করতে যাচ্ছি এবং তার জন্য পুরা ত্রিপুরা থেকে আমাদের জয়নিং এ প্রত্যেক মন্ডল থেকে গত 2 ডিসেম্বর থেকে অলরেডি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং তার জন্য প্রত্যেক মন্ডলে আমরা অলরেডি একজন করে আমরা অবজারভার দিয়েছি যে পুরো সেই প্রোগ্রামকে মন্ডল থেকে লোকগুলা কিভাবে আসবে, কিভাবে আমাদের ভেহিকলস গুলো আসবে, সেটার জন্য পুরো এই 13 তারিখ প্রোগ্রামের জন্য আমরা এক বিশেষ যে মহাযোগদান সভা, সেখানে প্রায় আমাদের টার্গেট 5 থেকে 6 হাজার লোক ওই দিনে জয়নিং হবে প্রত্যেক মন্ডল থেকে। যে আমাদের টেন্টেটিভ লিস্ট আমাদের কাছে এসেছে, এখন অব্দি প্রায় 5,000-এর উপরে আছে জয়নিং হবে। তো সেটাকে সামনে রেখে আপনাদের মাধ্যমে পুরা ত্রিপুরাবাসীকে আমরা জানা দিতে চাই ওই দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি পক্ষ থেকে বিশেষ করে জনজাতির আমাদের যে একটা মহাযোগদান সভা, এই মহাযোগদান সভাতে সমস্ত আপামর জনগণকে আমার তরফ থেকে এবং প্রদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ আমরা জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে ওই দিনে আমাদের প্রথমে একটা টেন্টেটিভ ডেট ছিল 10 তারিখ আমরা করার কথা ছিল, কিন্তু একটা বিশেষ অসুবিধার কারণে আমরা সেটাকে ডেফার করে আগামী 13ই ডিসেম্বর আমরা ওই দিনে অফিসিয়ালি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ডিক্লেয়ার দিচ্ছি যে আগামী 13ই ডিসেম্বর এই প্রোগ্রামটা আমাদের হবে। এবং বিশেষ করে সাউথ থেকে এবং সিপাহীজলা অব্দি যে গাড়িগুলো আসবে তারা থাকবে আমাদের উমাকান্ত ময়দানে, তারা গ্যাদারিং হবে এবং পার্কিং হবে। এবং বিশেষ করে খোয়াই বা আমবাসা বা আপনাদের মান্ডাই বা মজলিশপুর এবং নর্থের একটা অংশ যারা আসবে তারা আষ্টপল ময়দানে তাদের গ্যাদারিং হবে। এবং খোয়াই যে পার্ট, তারারও একটা পার্ট যারা এই খোয়াই হয়ে আসবে তাদের পার্কিং হবে আপনাদের গুর্খা বস্তি এলাকার মধ্যে। তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের পুরো প্রত্যেক মন্ডলে এবং পুরো কার্যকর্তাকে আমন্ত্রণ করি এবং তার সাথে সাথে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আমাদের এই মহাযোগদান সভার মাধ্যমে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, বিজেপি কোন জায়গায় দুর্বল নয়, বিজেপি সবসময় শক্তিশালী এবং আমরা কার্যকর্তাদের মাধ্যমে আমরা আগামী দিন এইভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। देखिए हम मोथा के साथ अलायंस में है, राज्य में अलायंस में है। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम एडीसी में अलायंस नहीं है। वहां हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा है मेरे सामने, प्रदेश का उपाध्यक्ष श्री विमल चाकमा जी। हम एडीसी में अपना अपोजिशन का जो दायित्व है वही निभा रहा है। अभी वो हम लोगों के साथ अलायंस में है, फिर भी हम लोगों को प्रोग्राम करने नहीं दे रहा है, तो इन लोगों का दुर्बलता है, त्रिपुरा का दुर्बलता है। अलायंस में रहते हुए ऐसा करके अटैक कर रहा है। हमने तो आज तक उन लोगों को कभी अटैक नहीं किया, कहीं पर भी उन लोगों को बाधा नहीं डाला। उन लोगों का अगरतला में प्रोग्राम हुआ है, हमने कहीं पर भी उन लोगों को रोक टोक नहीं किया है, ना उनको कोशिश किया है कि रोकने के लिए। आराम से ये डेमोक्रेसी कंट्री है, हर कोई भी यहाँ पार्टी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ये उन लोगों का दुर्बलता है। उन लोगों को मालूम है ये 2026 में ये मोथा और सरकार में नहीं रह रहा है, ये 100% तय हो गया और जनता ने चुन लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार बैठेगा। तो उस डर की वजह से ये सब कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, गुंडागिरी करके ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये जनवरी तक है, उसके बाद आप लोगों का ये जो दिन है वो समाप्त हो जाएगा। ये बीजेपी का शासन चलने वाला है एडीसी। मोथा हर जगह पे बोल रहे हो, सब जगह बोलছে যে মুখ্যমন্ত্রী যে জায়গায় এডিসি এলাকা যে জায়গায় সভা করছে ওই জায়গায় সব ফোকসি কোনো লোক আসে না, ওটাকে লোক ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছে একটা। দ্বিতীয়ত বলছে এডিসিতে কোনো টাকা দেওয়া হয়নি বলে ওরা দাবি করছে। মথার বিধায়ক থেকে শুরু করে এমডিসি যারা সবাই একই বক্তব্য করছে, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী যে জনসভাকে কেন্দ্র করে ওনাদের যে প্রশ্ন আমি ক্লিয়ার করে বলতে চাই, আপনারা দেখেছেন বিগত
3-4 মাসে কুমলুং, টাকারজলা, মান্ডাই, সিমলা, হেজামারা, বিশেষ করে রিসেন্টলি 2 দিন আগে যেটা বড় কাঠালে হয়ে গেছে যে যোগদান সভা যদি ফক্সি বা ফেক হয়ে থাকে তাহলে এই লোকগুলো আসলো কই? পুলিশ আছেন, প্রশাসন আছে, গাড়িগুলো কোথেকে আসছে, কোথায় থেকে আসছে একবার খবর দিবেন। তো আমি ওনাদের কাছে বলবো, আমরাও বরাবর দেখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধান সভাপতি যেখানে প্রোগ্রাম করবে বা জয়নিং সভা করবেন, তারা ওইখানে বরাবর গিয়ে পরের দিন এক বাজার সভা করবো বা একটা প্রেস মিট করবো যে ফেক জয়নিং। যদি বিজেপির ফেক জয়নিং হয়ে থাকে তো তাদের এত মাথা ব্যথা কেন? কিসের বই এত? তাদেরও যদি একটু শক্তই থাকে তাহলে তো এটা কাউন্টার প্রেস মিট কোনো বিষয় নাই এখানে। তো মানুষ জানে, সাধারণ মানুষ, আপন বিশেষ করে আমাদের জনজাতি যারা আছেন তারা সবাই জানে যে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আর আটকানো যাবে না। মানুষ এখন সচেতন, এই সচেতনের জন্যই তাদের কাছে লোকগুলা নেই। আমরাও দেখছি এই যে গত 27 ডিসেম্বর আষ্টবলের যে প্রোগ্রাম, সারা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন, সারা ভারতবর্ষের মানুষ দেখেছেন, তাদের কতজন সংখ্যা হয়েছে এখানে। আর একটা প্রশ্ন যে এডিসি কে টাকা দেওয়া হয় না, রাজ্য সরকার এখনো দম আছে, এখনো আছে আমাদের যে তাদের কাছে কতটুকু টাকা দেওয়া হয়েছে, বাজেটের মধ্যে থেকেও কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বাজেটের বাইরে স্পেশাল প্যাকেজ হিসেবে তাদেরকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে আমাদের কাছে পুরো নথি আছে। যদি ওনাদের জনপ্রতিনিধি যে কেউ কমপ্লেন করে থাকে বা এরকম বিষয় বলে থাকে তাহলে আমি তাদেরকে সাজেস্ট করব একবার ভালোভাবে পড়াশোনা করে জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। ওইটাও এভাবে আনফরচুনেটলি ইলেক্টেড হয়ে আবুল টাবুল কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোনো লাভ হবে না। আমাদের ট্রেজারি সিস্টেম আছে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আছেন, আপনারা একবার জেনে নিন কত টাকা দেওয়া হয়েছে, কতটুকু এখন অব্দি এডিসি কে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং স্পেশাল প্যাকেজ হিসেবে কত টাকা দেওয়া হয়েছে। তো সুতরাং এইসব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে কোনো লাভ নেই। তো তারা সময় গণে আসছে, তার জন্য আবুল টাবুল যখন তখন মন গড়ানা যেরকম ভাবে মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছে। বিপিনবাবু, আপনি বলেছেন জানুয়ারির পরে শেষ কথা, তাহলে কি এডিসিতে কি একটা প্রতিযোগিতা করার প্ল্যান রাজ্য বিজেপি? আমরা আমাদের মতো করে যেভাবে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আমরা 100% নিশ্চিত আমরা সরকার করতে পারবো। অ্যালায়েন্স হবে কিনা সেটা আমাদের দিল্লি আমাদের যারা হাই লেভেল নেতৃত্বরা আছেন ওনারা দেখবেন সেই বিষয়গুলো। ধন্যবাদ সবাইকে। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, चिबाई, नमस्ते। मैं आप सबको फेसबुक लाइव में आकर मैं कुछ कहना चाहता था, इसके लिए मैं आज आया हूँ फेसबुक लाइव में। बहुत लोग मुझे कल से फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि महाराज कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं आपके खिलाफ और आपको रिएक्ट करना चाहिए या आपको उसका जवाब देना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एक कहावत है ना, मायूंग उकलो को सुई सुंगो। तो हर चीज में मुझे एक्सप्लेन या जवाब देने का कोई दरकार नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है अपने लोगों का भविष्य के लिए। मैं जानता हूं कि जब आप अच्छा काम करोगे तो आपके खिलाफ लोग बात करेंगे, क्योंकि जो लोग ने पिछले 75 साल से हमारे गरीब तिपरासा का फायदा उठाया है वो लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो किसी और से बात बुलवाएंगे, लेकिन दिमाग किसी और का होगा, लेकिन जुबान अपना तिपरासा का होगा। लेकिन मैं इस दलदल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूं कि हमारे तिपरासा को क्यों एक होना चाहिए, क्यों हमारा थानसा होना चाहिए, क्यों हमें छोटे छोटे चीज में खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा सपना बड़ा होना चाहिए। हमको क्यों आज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल और ये सब चीज जो मैं बात करना चाहता हूं बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो वो पर्सनल होकर मेरे बहन को गाली देंगे, कभी कभी मेरे पिताजी को गाली देंगे,
कभी मेरी माँ को गाली देंगे, मुझे तो गाली देते ही रहते हैं, लेकिन ये राजनीति नहीं है। अगर आपको काउंटर करना है तो पॉलिटिकली काउंटर कीजिए। मैंने क्या पॉलिटिकल बात गलत बोला कि आपको पसंद नहीं आया? मैंने जमीन का अधिकार के बारे में बात किया, आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? कि तिपरासा को लैंड राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने कॉकबोरॉक इन इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, आपका क्या राय है? कॉकबोरॉक रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए कि नहीं, कि हमें बांग्ला में परीक्षा देना चाहिए, उसमें आपका क्या राय है? मैंने कहा कि हमारा तिपरासा अगर थानसा एक हो जाए तो हम लोग बांग्लादेश को भी दिखा सकते हैं कि हमारा क्या भविष्य है, हमारा क्या अधिकार है। उसमें आपका क्या पोजीशन है? मैंने आज से 5 महीने पहले एसआईआर के बारे में बात किया। 5 महीने पहले सबसे पहले त्रिपुरा से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में गया, इलेक्शन कमीशन में बात किया एसआईआर के लिए, तो वो तिपरा मोथा से हम लोग थे। उस समय आप लोग ने कुछ नहीं बोला। आज दिल्ली से आपको इंस्ट्रक्शन आ गया तो आज आप बोल रहे कि एसआईआर त्रिपुरा में होगा। तो आप लोग अपना दिमाग से तो काम नहीं करते, कोई और का, किसी और का दिमाग से आप लोग काम करते हैं और अटैक हमको करते हैं। लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका गाली मेरे लिए सर्टिफिकेट है कि मैं जिंदगी में कुछ ठीक कर रहा हूं। और अभी एक सिंपल बात है, मैं लैंड का तो मैंने बोला, फरवरी महीने में परीक्षा होगा स्टूडेंट्स का। हम कौन से सब्जेक्ट में कॉकबोरॉक को लिखें? इन इंग्लिश या बांग्ला या हिंदी? आप लोग अपना माइंड मेकअप कीजिए। हमने तो बोल दिया कि कॉकबोरॉक शुड बी इन रोमन स्क्रिप्ट। आप कौन सा स्क्रिप्ट चाहते हैं बोलिए, कि इसके लिए भी परमिशन चाहिए आपको आपके मालिक से। मेरा मालिक ऊपर वाला भगवान है, आपका मालिक भगवान नहीं कोई और है। इसके लिए आप लोग रबर स्टैम्प बन के बात करते हैं, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूं। लेकिन तिपरासा को दुख नहीं लगना चाहिए। आज तिपरासा अकेला नहीं है, आज तिपरा के साथ द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस लोग इज विद द तिपरासा पीपल। और एक दो लोग इधर उधर बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने लाइन में चलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में बात किया, चिटागोंग हिल्स के बारे में बात किया, तो आज सब चुप हो गए। यही लोग बोलते थे क्या है ग्रेटर तिपरालैंड, आज भी मैं बोल रहा हूं ग्रेटर तिपरालैंड। मैंने एसआईआर के बारे, कितना जून का महीना था, हम लोग गए थे दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, यही लोग ने मजाक उड़ाया था। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखा है कि त्रिपुरा में एसआईआर होना चाहिए। यही बात मैंने 6 महीने पहले बोला था। तो जो मैंने 6 महीने पहले बोला था आपने मजाक उड़ाया। आज 6 महीने बाद जब आपका मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री यही बात बोलता है, तो आपका क्या व्यू है, राय है? क्योंकि आपका दिमाग, आप अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। आपको कोई बोल रहा है ये बोलने के लिए, और आपको ये, आप बेसिकली गुलामी कर रहे हो। और गुलामी भाई हमारा तिपरासा का सेकला सेकली नहीं करेगा। गलती हो गया पिछले, मतलब कि हमने गलती की पहले कि हमने किसी और का बात सुन के तिपरासा का थानसा का तोड़ा। लेकिन आज का तिपरासा 2025 में, 2026 में हमारा थानसा टूटेगा नहीं और मजबूत होगा। हमने 6 शेड्यूल के बारे, यू वांट 6 शेड्यूल, ऑफ कोर्स 6 शेड्यूल है, लेकिन जमीन का अधिकार आप मुझे बताइए कि लैंड तिपरासा का पास पट्टा होना चाहिए कि नहीं? बोडोलैंड में दिया जाता है, कार्बी आंगलोंग में दिया जाता है, खासी गारो जयंतिया हिल्स में दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। सिर्फ त्रिपुरा में ये पावर हमारे पास नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए आपको क्या बोलना है इसके लिए। नहीं, परमिशन चाहिए आपको। तो मुझे बहुत, मैंने नोटिस किया, आप भी नोटिस कीजिए। अच्छा, मैं पर्सनल अटैक कभी नहीं करता हूं। मैंने किसी को मां, बहन या उनके पिताजी को गाली नहीं दिया। लेकिन आप बहन को उल्टा सीधा बोलते हो,
मां को उल्टा सीधा बोलते हो, मेरे पिताजी को उल्टा सीधा बोलते हो। एक स्टेटमेंट मैंने सुना कि महाराजा वीर विक्रम का एयरपोर्ट का नाम किया तो उपकार किया हमारे ऊपर। नहीं, जिसने एयरपोर्ट बनाया उसका नाम देकर आपने उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया। उपकार और स्वीकार में फर्क होता है। उपकार होता है जब आप ऐसी फ्री में कुछ दे देते हो। आपने स्वीकार किया कि एयरपोर्ट महाराजा ने बनाया है तो महाराजा के नाम में होना चाहिए। आपने मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया कि तिपरासा का प्रॉब्लम है, इसके लिए तिपरासा अकॉर्ड साइन किया गया, क्योंकि ये स्वीकार था कि आज भी त्रिपुरा का तिपरासा का अधिकार पूरा तरीके से नहीं मिल रहा है। उपकार नहीं है, ये स्वीकार है। आपने स्वीकार किया, इसके लिए साइन हुआ अकॉर्ड। तो बात करने से पहले सोचिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए भी है, आपके भविष्य के लिए भी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पार्टी करना है और पार्टी के बॉस को खुश करना है, तब आपका बॉस एक दिन आपको निकालेगा, क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। और मेरा लक्ष्य है कि जो भी तिपरासा हो, बीजेपी के अंदर हो, सीपीएम के अंदर हो, कांग्रेस के अंदर हो, मोथा में हो, जो वोट करता भी नहीं है, जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, वो तिपरासा का अधिकार मैं देना चाहता हूं। जिसका आज जन्म भी नहीं हुआ है, उसका भी मैं अधिकार देना चाहता हूं, क्योंकि ये फाइट भविष्य का है। और आपको जो करना है आप कीजिए। वी विल गो स्ट्रॉन्गर एंड वी आर स्ट्रॉन्ग। और मेरे जितने भी वॉरियर्स हैं, आप इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कैसे अपना मैसेज को और आगे ले जाना, कैसे अपने प्यार से त्रिपुरा में शांति रखना, त्रिपुरा में भाईचारा रखना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के बीच में झगड़ा नहीं होना। अभी त्रिंग आएगा, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर्स आएगा, हम क्यों बटे धर्म के नाम में? कोई जीसस को प्रार्थना करता है, कोई राम को करता है, कोई मां त्रिपुरा सुंदरी को करता है, कोई बुद्ध भगवान को प्रार्थना करता है, कोई अल्लाह को मानता है। हम क्यों धर्म के नाम में फाइट करें? हम क्यों किसी और का पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के खिलाफ जाए? ये नहीं होगा। और मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। हां, आपने कहा राजभवन इज नाउ लोक भवन, तो राजनीति को भी लोकनीति कीजिए, लोगों का फायदा होगा। राजनीति क्यों रख रहे हैं? लोकनीति कीजिए। राज्यपाल को भी क्या बोलेंगे आप? अगर राजभवन में, तो आज गवर्नर राज्यपाल को क्या बोलेंगे? ये भी विचार करना चाहिए। लेकिन असली चीज है कि ये जो हो रहा है आज, ये बहुत छोटे लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और हमें इस छोटे लोगों से उठ के अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपना जेनजी के लिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें फाइट तो करना पड़ेगा। एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। कहीं से कोई कुछ और करके अटैक करता है, कहीं से और कोई कुछ और बोल के अटैक करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, उनका नफरत, उनका जलन, their hatred, their negativity, their jealousy, उन्हीं को बर्बाद करेगा। क्योंकि जलन होता है, जेलसी होता है, नफरत होता है ना, वो एक जहर जैसा होता है। आप जहर खुद पी रहे हो, अपने सिस्टम को खराब कर रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर ही जहर डाल रहे हैं। और ये जहर मुझे नहीं मारेगा, आपको खत्म करेगा। तो सोच को बदलिए। 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है। नए साल में एक नया सोच होना चाहिए, भाईचारा का, एकता का, प्यार का। लेकिन आपको कुर्सी का पावर चाहिए, और मैं ये पावर गरीब लोगों को देना चाहता हूं। एनीवे, मैंने प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबसे पहले डीजीपी को थैंक यू बोला, मैंने मुख्यमंत्री जी मानिक शाह को थैंक यू बोला, मैंने प्रशासन को थैंक यू बोला कि इतने अच्छे तरीके से इतने लोग आए और कहीं में एक पत्थर नहीं फेंका गया, कहीं में मारपीट नहीं हुआ। तो ये मैसेज क्या है कि तिपरासा लोग भी, हम लोग भी तरीके से अपना काम कर सकते हैं, अपना आवाज रख सकते हैं, लेकिन हम लोग गुंडागर्दी नहीं करेंगे।
तो ये हमेशा हमारे ऊपर बोलना कि तिपरासा को बेवकूफ कर वायलेंस लाना है, त्रिपुरा में अशांति फैलाना है। अशांति तो मैंने आज तक नहीं फैलाया। 1 लाख से ऊपर लोग आए, किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को गाली नहीं दिया। सब ने अपना अधिकार के बारे में बात किया और उसके बाद गांव चले गए। आपको थैंक यू बोलना चाहिए तिपरासा को, लेकिन नहीं, आपके दिल में जहर है, नफरत है, तो आप ये गाली देते रहेंगे। एनीवे, समय बताएगा कि बुबागरा ने क्या बोला था और आपने क्या बोला था। एंड टू ऑल माई वॉरियर्स, बी स्ट्रांग। हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम लोग हारने वाले नहीं हैं। हम लोग भी क्षत्रिय हैं, हम लोग भी वॉरियर्स हैं, हम लोग भी थानसा जानते हैं। और आज ये हमारे पास कलम है। आप चाहते हैं कि हमारे पास बंदूक हो, हमारे हाथ में नहीं होगा। हम लोग कलम से आपको जवाब देंगे। और हां, एग्जाम्स आने वाला है, हमको मालूम करना है कि इस बार तिपरासा को परीक्षा अपने स्क्रिप्ट में लिखने का अधिकार मिला जाएगा या कोई और डिसाइड करेगा कि हमको किस स्क्रिप्ट में परीक्षा लिखना है। ये डिसाइड कौन करने वाला है? तिपरासा डिसाइड करने वाला है या कोई और डिसाइड करेगा? मुझे लगता है कि ये डिसीजन हमारा, हम लोगों का होना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों का होना चाहिए, पेरेंट्स का होना चाहिए, मां बाप का होना चाहिए, ना कि कोई और का। और ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपने बच्चे का भविष्य के बारे है। तो मैं देखना चाहता हूं कि उसमें आपका बात करोगे। सो बी रेडी, let us be ready. Time has come to teach these people of befitting reply a lesson. And we will do it, but not with hate, with success, with love, with our Thansa. Belai no Hambai, Khulunka.